Okay. So first today we will quickly finish two programs and then we will move on to the concept of 2D arrays. For so long we have been studying 1D arrays. Now we will move to the concept of 2D arrays. Okay. Now, suppose the program is write a program to merge two arrays. Okay. Two unsorted arrays. First, unsorted arrays. So what will be the concept? There will be one array 1, there will be one array 2. We will merge this and there will be one array 3 which will print all the elements, right? So if I will take enter the number of elements you wish to enter in array 1, right? Suppose that number I am taking as n1. Fine. So suppose I will enter the elements of my array one by one. Fine. Suppose this I am naming as everything I am changing as array 1. Now suppose another array I need to take. Enter the number of elements you wish to enter in array 2. The n is your 2. This will be your 2. And this will be your 2, right? So since I have taken two variables n1 and n2, I am declaring that since I have taken two arrays arr1 and arr2, I am declaring that. Fine. So up to this, what is done? Up to this only I have taken the elements of array 1 and I have taken the elements of array 2. Up to this my work is done. Now if my array 1 has n1 elements, if my array 2 has n2 elements, then suppose there will be one array 3 where I will merge these two arrays and show, and that will have my n1 plus n2 elements, and that suppose I am naming it as M. Fine. So I have taken M. Oh, sorry. So I have taken M to be N1 plus N2. Now, can anyone say what is the concept? Up to this was very easy. So I will just connect my whiteboard so that okay. I will just connect my whiteboard. What is the concept? The concept is there is one, there is one array 1, there is one array 2. Suppose these has n1 elements, these has n2 elements. So finally, there will be one array 3 where the number of elements will be n1 plus n2. That I am taking as M. Now, in order to merge the two arrays and show it in another third array, so what logic can be applied? You people apply your brains and you tell me what logic can be applied. Suppose here the element is 2, 3 and 6. And here is 4, 19, 20, 21. Suppose these are the elements. So what should be done? Anyone, apply your brain, use it and tell me what can be done or what should be done. Anyone? Aditya? Yes, ma'am. Bolo.
क्या कर, उस दिन तो तुम रिप्लाई नहीं दिए, क्या कर सकते हो बोलो? इतना दिन से प्रोग्रामिंग देख रहे हो, अभी तो कुछ दिमाग का यूज करना है। अभी जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा, अभी थोड़ी ना ऐसे करके करके देंगे। अभी तो घर पे हो इसलिए इतना करके दे रहे, तब तो खुद को ही करना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, क्या हो सकता है? इफ आई नीड टू शो merging of two arrays, what can be the logic? मेरा array 3 में क्या दिखना चाहिए एटलीस्ट, ये तो बताओ। मैम पहले एरे 1 का सारा एलिमेंट को लूप करके एंटर करेंगे, उसके बाद सेकंड एरे को। हाँ राइट, मतलब पहले एरे 1 का सारा एलिमेंट्स एक के बाद एक यहाँ पे कॉपी करते हैं, फिर एरे 1 खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे, एरे 2 का जो सारा एलिमेंट्स एक के बाद एक कॉपी करते हैं, है ना? फिर एरे 2 खत्म हो गया, बस देखो अब हम अगर एरे 3 को प्रिंट कराएंगे तो मेरे को देखो दिखेगा एरे 1 एंड एरे 2 मर्ज हो गया है ना? So this is the way. The logic is we are copying all the elements of array 1 one by one first to array 3. After it's finished, we are copying all the elements of array 2 one by one to array 3. है ना? मतलब एक काउंटर रखेंगे, जो काउंटर कोई भी काउंटर ले लो, तुम आई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई 0 से लेस देन n-1 यहाँ पे कॉपी होता गया, फिर से आई 0 से स्टार्ट हुआ फॉर एरे 2, आई 0 से लेस देन n-2 यहाँ पे कॉपी होता गया, ठीक है? पर यहाँ पे जो इंडेक्स का नाम है ये कुछ और देना पड़ेगा, है ना? क्योंकि फर्स्ट सपोज जे था, तो जे 0 में फर्स्ट इसका आई 0 कॉपी हुआ, फिर जे प्लस प्लस हुआ, मतलब जे 1 में इसका कॉपी हुआ, फिर जे प्लस प्लस हुआ, इस पे इसका कॉपी हुआ, फिर जे प्लस प्लस हुआ। अभी यहाँ पे एरे खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट वाले पे क्या होगा, 0th एलिमेंट जो है ये जे के जगह कॉपी होगा, ये कॉपी हुआ, तो ऐसे चलता गया। मतलब मेरा जो एरे 3 का जो इंडेक्स है, जो तुम कुछ भी ले सकते हो, जे के एल एम एनीथिंग यू कैन गिव, this must be one type of variable which will keep a count of array 3, and other two arrays you can take any variable and you can traverse and copy. Fine. अगर ये theoretical knowledge समझ गए हैं, so if I now switch on to the programming part, so what can be done? एक for loop चलाएंगे, ठीक है? I less than 0 से I less than n-1 करेंगे, और उसके भीतर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। क्या कॉपी करेंगे, एरे 1 का एरे 3 में। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, राइट साइड में क्या लिखेंगे बताओ? इक्वल टू ऑपरेटर तो होगा ही। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर का लेफ्ट साइड में क्या होगा और असाइनमेंट ऑपरेटर राइट साइड में क्या होगा? एरे 1 का सेल्स एरे 3 में कॉपी करना है, तो कौन सा की साइड में लिखेंगे, सीखे थे ना क्लास में? मैम एरे ऑफ 3, यहाँ पे लिखेंगे एरे ऑफ 3। फाइन, सपोज इसका इंडेक्स जे दे रहे हो और यहाँ पे लिखेंगे एरे ऑफ 1, इसका इंडेक्स आई। और एक काम बाकी है, बोलो तो क्या काम बाकी है? जे प्लस प्लस करते रहोगे ना, एक जब एरे 3 में कॉपी हो जाएगा तो नेक्स्ट वाला इंडिकेटर को पॉइंट करना है ना, कर्सर को। तो इस लूप को यूज करके मेरा एरे 1 का एरे 3 में कॉपी हो गया। सिमिलरली यही लूप चलेगा, अब एरे 2 के लिए मेरा कॉपी होगा, ठीक? सो एरे 2 के लिए सारा एरे 3 में कॉपी हो जाएगा, ठीक? अभी मेरा क्या काम करना है, अभी मेरे का काम बस यही है, हमको एरे को प्रिंट करके दिखाना है। तो मेरा एरे तो होगा m एलिमेंट्स का, तो हमने m एलिमेंट्स लिए, ठीक है? और m एलिमेंट्स को हम प्रिंट कराएंगे और मेरा प्रिंट हो जाएगा। बस इस पे हमको एरे 3 डालना है, और एरे 3 में आई नहीं होगा,
एरे 3 का तुम्हारा इंडेक्स था जे, है ना। बस यही है प्रोग्राम, बहुत इजी, ठीक ना। अभी चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओ, एरे 3 बोल के कोई वेरिएबल लिया ही नहीं। एक चीज ध्यान में रखना कि तुम अगर एरे 1 एंड एरे 2 का समेशन कर रहे हो तो एरे 3 में एटलीस्ट फिर 60 एलिमेंट्स होना चाहिए, है ना। अगर कहीं भी मन करे कि हम मैक्सिमम एलिमेंट्स को भर ही ले तो एटलीस्ट ये होना चाहिए, उतना स्पेस रहना चाहिए। फाइन। So now enter the number of elements in your first array. I suppose I wish to enter 3. So 1, 2, 3. Enter the number of elements in your second array. Suppose I wish to enter 3 more. 4, 5, 6. Oh, एक printf statement डालना भूल गए क्या? 1 minute. For I equal to 0, I less than m, I plus plus, ठीक है तो लिखे हैं, प्रिंट किए हैं। ओहो, यहाँ पे तो आई होगा, आई तो फिर से हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं ना। एक सेकेंड, कहीं पे स्कैनफ का कुछ ये कर रहे कि नहीं, नोटिस करो तो स्कैनफ का कहीं पे कुछ मैम जे को इनिशियलाइज नहीं कर रहे, जे के तो किए है इनिशियलाइज, डिक्लेयर किए मैम, इनिशियलाइज नहीं किए हैं। उसका ये प्रॉब्लम नहीं है, स्कैनफ का प्रॉब्लम होगा कहीं पे। स्कैनफ देखते हैं फिर से। ठीक है, fine. So this was an example where we have written a program to merge two arrays. Now the twist is this was an unsorted array. If the same was for sorted arrays, will the logic be same? Yes or no? If the same was for sorted arrays, will the logic be same? Yes or no? बताओ, यही लॉजिक से सॉर्टेड एरेज हो जाएगा क्या? मर्जिंग ऑफ टू सॉर्टेड एरेज? No, ma'am. अच्छा, नो मैम। अच्छा, अगर नो मैम किए हो तो ये तो हम लोग जान गए कि नहीं होगा। फाइन, सपोज ये मेरा एरे 1 है, यहाँ पे है 4, 12 एंड 1 मिनट एंड 19, ठीक है। और ये मेरा एरे 2 है, यहाँ पे है मेरा 3, 11 एंड 16, ठीक है। अभी ये मेरा है एरे 3, ठीक है। ये सब हम करते रहे। फाइन, ये सपोज मेरा n1 एलिमेंट्स, ये मेरा n2 एलिमेंट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा। पहले एरे 1 का कितना एलिमेंट्स पूछेंगे, वो n1 में स्टोर करेंगे, फिर एक लूप चलाएंगे, एरे 1 के जितना एलिमेंट्स है लेंगे, फिर एरे 2 में कितना एलिमेंट्स है n2 में सेव करेंगे, फिर एक लूप चलाएंगे, जितना एलिमेंट्स है सेव करेंगे। ये तो सिंपल सा लॉजिक, इतना तक सेम ही होगा दोनों का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम लोग सिंपल एरे 1 को यहाँ कॉपी कर रहे थे ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा बोलो तो? प्रॉब्लम यही होगा
सपोज तुम अगर ये कॉपी कर दे रहे हो, ठीक है, और फिर तुम array 2 का कॉपी कर दे रहे हो, is this should be the merged final merged result? The answer is no, because since you are dealing with sorted arrays, so final जो result होगा that also must be a sorted answer. यहाँ पे 4 पहले 3 बाद में, 12 पहले 11 बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए. This must not be the case, right? So it is very obvious that पहला वाला जो logic सीखे of merging to unsorted arrays, वो वाला यहाँ पे नहीं चलेगा, because the arrays are sorted. So what we need to do? Anyone? कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी आइडिया आ रहा है, what we need to do or what we can do? मैम एक एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा अलग अलग एरे से, जैसे एक बार 3 से आया तो दूसरे एरे से फिर 4 लेना होगा. हाँ, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, पर इस सॉल्यूशन में बहुत डिफिकल्ट होगा, फिर से अलग बार एरे लेना पड़ेगा. दैट वी डू नॉट वांट. वी आर कीपिंग फिक्स्ड एरे 1 एरे 2 एरे 3 फिक्स्ड, और हम हिंट भी दे रहे हैं. हिंट यही है कि काउंटर्स ले लो. ये एरे को करने के लिए एक काउंटर लो, और ये एरे को डिनोट करने के लिए एक काउंटर लो, और ये एरे को डिनोट करने के लिए और एक काउंटर लो. ठीक है, तीनों काउंटर वेरिएबल्स ले लो, लेके बोलो तो कैसे हो सकता है. एरे और नहीं लेंगे, और स्पेस माने और स्पेस बुक करके नहीं रखेंगे. बोलो तो फिर. मैम आई और मैम पहले आई और को कंपेयर करेंगे, जो छोटा रहेगा उसको के वाले वैल्यू में पुट कर देंगे. फिर अगर मान लीजिए जे छोटा है तो जे का वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, आई तो बड़ा है तो आई का वैल्यू को आई वहीं पे रह जाएगा, मेरा इंक्रीज हो जाएगा और के भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक ठीक, मतलब सृष्टि ने क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है पहले आई एंड जे का कंपेयर करेंगे. I will compare what is in my element of when I equal to 0 and what is in my element when j equal to 0. The one which is smaller will be copied to k is equal to 0. We can do that. And जहां पे कॉपी कर लिए उसको j प्लस प्लस कर देंगे. पहले हम j से कॉपी हो गया, अभी j प्लस प्लस हुआ, मतलब अभी मेरा j कहाँ पे डिनोट करेगा, मेरा j डिनोट करेगा इस पे. पर हम i को इंक्रीमेंट नहीं किए क्योंकि i से मेरा कॉपी हुआ नहीं है. हम फिर से चेकिंग करेंगे. i में मेरा i0 में क्या है, मेरा कौन सा एलिमेंट है, 4, और j में कौन सा एलिमेंट है, 11. तो जो छोटा है उसको हम नेक्स्ट वाले में अच्छा, और एक चीज, ये होने के बाद हमेशा मेरे को k प्लस प्लस करना है, दैट इज बाय डिफॉल्ट. तो अभी मेरा k डिनोट कर रहा है इस लोकेशन में, माय k इज डिनोटिंग इन दिस लोकेशन. तो जो छोटा है उसको हम k लोकेशन में डाल देंगे, और जिससे कॉपी किए उस वाले पे इंक्रीमेंट करेंगे. तो अभी मेरा ये वाला हाल है. तो अभी मेरा i पे है 12 और j पे है 11. तो अभी हम लोग j से कॉपी करेंगे, ठीक ना. तो हम j से कॉपी कर रहे, ठीक. अभी मेरा j इंक्रीमेंट हो गया, अभी i से कुछ नहीं करेंगे, i में कुछ हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है. अभी मेरा जब हो गया, अभी मेरा k इंक्रीमेंट करेंगे, k अभी मेरा खाली जगह पे डिनोट कर रहे हैं. फिर से हम चेक कर रहे हैं, i में मेरा है 12 और j में मेरा है 16. हम अभी i वाले को कॉपी करेंगे. लो चलो i वाले को कॉपी कर दिया. i वाले को जब कॉपी किए तुरंत हम k वाले को भी इंक्रीमेंट किए, और जहां से कॉपी किए वहां से भी इंक्रीमेंट किए. हो गया. चलो अभी मेरा i में है 19 और j में है 16. अभी हम लोग कहां से कॉपी करेंगे, j से कॉपी करेंगे. जब तक कॉपी कर लिया तुरंत हम k का इंडेक्स 1 बढ़ा देंगे, और तुरंत हम j का इंडेक्स 1 बढ़ा देंगे. जब j का इंडेक्स बढ़ा दिया मतलब और कोई एलिमेंट्स नहीं है मेरा, n2 रिच हो गया. मतलब इफ there are any more elements left in your array 1, just copy as it is. Why? Because the two arrays are sorted in manner, they are themselves in sorted manner, है ना. So this is the concept. ये याद रखना,
कहीं भी अगर कोई एरे कॉपी करने वक्त पहले खत्म हो जाते हैं, मतलब नेक्स्ट वाले एरे में जितना भी एलिमेंट्स है वो खुद ब खुद कॉपी कर दो, because the two arrays in themselves are always sorted in place. So if my array 1 has more elements and array 2 has less elements, दो का सारा एलिमेंट कॉपी हो जाने के बाद अगर array 1 में एलिमेंट्स बाकी है खुद ब खुद कॉपी कर देंगे, या फिर अगर array 1 has lesser elements and array 2 has more elements, array 1 में अगर सारा एलिमेंट कॉपी हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एलिमेंट्स को ट्रावर्स करना, तब array 2 में जितना भी एलिमेंट्स है आंख बंद करके कॉपी हो जाएगा और कुछ चेकिंग भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? Because the two arrays are themselves sorted. Fine. So this is the concept of merging two sorted arrays, जहां पे हम लोग एक I काउंटर, एक J काउंटर और एक K काउंटर, I काउंटर मेरा array 1 को, J काउंटर मेरा array 2 को और K काउंटर मेरा array 3 को इंडिकेट, ठीक है। So this is the theoretical portion. अब प्रैक्टिकली अगर ये करने जाए कैसे होगा? अच्छा रुको, पहले तो मेरा array 1 का एलिमेंट्स, array 2 का एलिमेंट्स इतना तक सेम ही रहेगा। सो मेरा इतना तक सेम ही रहेगा, ठीक है। पहले हम array 1 को लिए खत्म किए, फिर हम array 2 को लिए खत्म किए, फिर एक m को लिए जो n1 and n2 कर दिए। यहाँ पे हमने array 1, array 2, array 3 को भी ले लिए। यहाँ पे I को लिए है, ny, n2 को लिए है, j को लिए है, ठीक है, ठीक है। I, अच्छा j तो यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ पे कुछ और नाम दे देंगे। I को लिए, n1, n2 को लिए, m को लिए, अभी कुछ और नाम दे दो ताकि तुम लोग समझ पाओ, ठीक है। अच्छा अभी क्या होगा मेरा? अभी फर्स्ट क्या होगा? पहला तुम्हारा जो इंडेक्स है I, तुम्हारा पहला इंडेक्स n1 से छोटा है और तुम्हारा सेकंड जो इंडेक्स है, सेकंड एरे का जो इंडेक्स है वो तुम्हारा n2 से छोटा है, मतलब तुम्हारा एरे 1 में भी कुछ एलिमेंट्स है और तुम्हारा फर्स्ट एरे में भी कुछ एलिमेंट्स है, तुम्हारा सेकंड एरे में भी कुछ एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स होगा तो कॉपी होगा, एलिमेंट्स नहीं होगा तो कॉपी कैसे होगा, है ना। तो तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स है, सेकंड एरे में भी कुछ एलिमेंट्स है। इफ दिस इज द केस, देन व्हाट आर यू डूइंग? You are checking whether your array 1 का जो इंडेक्स में है एलिमेंट, whether that is lesser than your array 2 का इंडेक्स। अगर array 1 का इंडेक्स का एलिमेंट लेसर है तो array 1 का इंडेक्स तो एलिमेंट कॉपी कर रहे, और अगर array 2 का इंडेक्स का एलिमेंट का वैल्यू लेसर है तो array 2 का इंडेक्स का एलिमेंट वैल्यू कॉपी कर रहे। यस और नो? टेल मी। एरे 1 का और एरे 2 का इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हो हमेशा। एरे 1 का अगर स्मॉलर है वो कॉपी कर दे रहे थर्ड एरे में, या फिर एरे 2 का अगर स्मॉलर मिलता है पहले वो कॉपी करते रहे थर्ड में। इज दिस द केस? यस और नो? यस मैम। तो अगर एरे 1 का इंडेक्स पे आते हैं तो इसको कॉपी कर रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, जो इंडेक्स है उसको प्लस प्लस करते जाएंगे, है ना। और ओ सॉरी, इसके भीतर एक इफ होगा। इफ योर array 1 इंडेक्स में जो एलिमेंट है that is lesser than your array 2 का इंडेक्स में जो है, then what are you doing?
then ठीक है, then what are you doing? You are just copying array 1 को array 3 में, and if this is not the case, then what will you do? You will copy array 2 को array 3 में. ये सेकंड माने इंडेक्स सेकंड नहीं, हम इसको फर्स्ट सेकंड एरे का इंडेक्स ये बना रहे हैं, और ये हम लोग करते जाएंगे कब तक, मेरा और इंडेक्स मेरा प्लस प्लस होता जाएगा. इंडेक्स मतलब एरे 3 का, मानिए के, आई मतलब इंडेक्स फर्स्ट मतलब एरे 1 का आई, जे मतलब इंडेक्स सेकंड एरे 2 का जे. दिस इज द कॉन्सेप्ट. फाइन. अच्छा, हाँ बोलो. मैम वहाँ पे एंड ऑपरेशन क्यों लिए हैं, व्हाइल इंडेक्स फर्स्ट लेस देन n1? हाँ, एंड ऑपरेशन क्यों लिए? इंडेक्स फर्स्ट मतलब क्या है बोलो? मैम अरे 1. एरे 1. एरे 1 का क्या? मैम वहाँ पे तो और ऑपरेशन होना चाहिए ना, क्योंकि ना 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 ना, अगर दोनों एरेज में एलिमेंट्स है तभी तो मेरा कॉपी होगा ना. बिकॉज इफ योर एरे का इंडेक्स इज लेसर देन योर n1 एलिमेंट्स फॉर एरे 1 एंड ऑल्सो your index for array 2 is lesser than your value of n2 together, if it is true, मतलब इस पे भी एलिमेंट्स है वैलिड है, इस पे भी एलिमेंट्स है वैलिड है, then ना we can copy. और मतलब किसी एक पे वैलिड होने से ही हम लोग कॉपी कर देंगे, हम लोग तो ये नहीं कर रहे. हम एक चीज यहाँ पे नहीं लिखे ना, इसलिए शायद तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है. I need to initialize this also. अब शायद आप थोड़ा देखो तो एक थोड़ा आप शायद समझ में आ जाएगा. हम समझ गए. While 0 is lesser than your n1, मतलब 0 is lesser than 3, तब तक चलेगा ये लूप. एंड ऑल्सो 0 is lesser than n2, तब तक चलेगा मेरा लूप, जब तक मेरे एलिमेंट्स खत्म ना हो, है ना. इसका Yes, मीनिंग ये है. पर एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट ये था, हम बता रहे हैं कि इफ एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 आर ओवर, ठीक है, मतलब if elements of array 1 is over and array 2 elements are left, then what we will do? मैम अरे 2 का एलिमेंट्स को अरे 3 में कॉपी कर देंगे एज इज, है ना. मतलब मेरा एरे 1 को जो वेरिएबल और जो काउंटर डिनोट कर रहे हैं वो अगर n1 रीच हो जा रहा है और ये रीच हुआ है, पर एरे 2 को जो वेरिएबल काउंटर डिनोट कर रहे हैं वो अभी तक n2 में रीच नहीं किया है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस लाइन? व्हाई आई हैव रिटन दिस? This is if array 1 का elements are over and array 2 elements are left. That means array 1 का index has reached your n1, but array 2 का index has not reached n2 yet. It is lesser than n2. Then what we will do? We will simply copy all the elements of array 2 to our array 3. आंख बंद करके. So ये तो और भी आसान है. और हम लोग क्या करेंगे? और बस. and if the opposite will be the case,
if elements of array 2 are over and elements of array 1 are left, then what will we do? So the elements of array 2 have reached the limit. So, and the elements of array 1 are still lesser than n1. So what we will do? We will simply copy the elements of array 1 to array 3 and we will increment one by one and we will increment index one by one, है ना? अब इतना तक सारा कुछ हो गया। मैं हाँ बोलो। ये इफ कंडीशन तो अननेसेसरी लग रहा है। हाँ बोल रहे हैं। इस इफ कंडीशन का मतलब क्या है? दो केस हो सकता है, या फिर एरे 1 जल्दी खत्म हो गया, एरे 2 बाकी है, या फिर एरे 2 जल्दी खत्म हो गया, एरे 1 बाकी है। ठीक है, अगर एरे 1 अगर जल्दी खत्म हो जाते हैं मतलब क्या? एरे 1 में n1 एलिमेंट्स रीच हो गया, है ना? मैम वो कंडीशन तो वाइल कंडीशन में चेक हो ही जा रहा है, फिर इफ कंडीशन का क्या जरूरत? कौन सा कंडीशन? ये वाले में? मैम जो वाइल लूप वाले में में जो तो कंडीशन डाले ये वाले या आगे वाले? यस मैम, ये वाले में देखो। अगर हाँ बोलो। अगर इंडेक्स सेकेंड में एरे 2 में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं बाकी है तो वाइल कंडीशन पे ही रन ही नहीं करेगा, तो फिर इफ कंडीशन का क्या जरूरत? इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो फिर वाइल में वो घुसेगा ही क्यों? है ना? तुम्हारा एक देखो, तीन चीज हो सकता है ये वाले में। तुम्हारा एरे 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, एरे 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा कुछ कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद इस पे जब कर्सर आएगा वो देखेगा कि हाँ एरे 1 n1 एलिमेंट्स रीच हो गया है, इस पे घुसेगा, घुस के देखेगा कि नहीं एरे 2 में भी n2 एलिमेंट्स रीच हो गया है, मतलब इस लूप से बाहर आ जाएगा। फिर से कर्सर यहाँ पे आएगा, देखेगा कि एरे 2 के n2 एलिमेंट्स रीच हो गया है, पर नहीं एरे 1 का भी n1 एलिमेंट्स रीच हो गया है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। फिर से इस लूप के बाहर आ जाएगा, मतलब ये वाला दो लूप एग्जीक्यूट होगा ही नहीं और सीधा सीधा ये तुम्हारा प्रिंट आउट कर देगा। ठीक ना? ये होगा तुम्हारा अगर दोनों का एलिमेंट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इफ योर n1 एंड n2 आर सेम, 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स लाइक दिस। बट इन एनी ऑफ द केसेस कि आगे पीछे होता है, मतलब एरे 1 में 2 एलिमेंट है, एरे 2 में 6 एलिमेंट्स है, या फिर एरे 1 में 6 एलिमेंट्स है, एरे 2 में 1 एलिमेंट है, तब तुम क्या करोगे? तब तुम यहाँ पे क्या लॉजिक डाल रहे हो? यहाँ पे लॉजिक डाल रहे हो कि एरे 1 का एक एलिमेंट एरे जे से कंपेयर होगा, एरे 2 से कंपेयर होगा। पर तुम्हारा अगर एलिमेंट ही नहीं है एरे 1 में तो तुम ये कंपैरिजन करोगे कैसे? ये सुन लो, तो तुम्हें तो फिर और लॉजिक फिर से लगाना है उस वाले सिचुएशंस के लिए जहां पे एलिमेंट्स और नहीं है पर एक एरे में एलिमेंट्स और है अभी भी कॉपी करने के लिए। ये वाले सेक्शन कब रन करेगा? जब एरे 1 और एरे 2 में एलिमेंट्स है, उस वाले पे रन करेगा, चेकिंग करके बैठाएगा। पर अगर मेरे एरे 1 में 2 एलिमेंट है और एरे 2 में मेरा 17 एलिमेंट्स है, तो मेरा एरे 1 और एरे 2 का चेकिंग होगा कैसे? एरे 2 तो मेरा खत्म हो गया है ना? तब हमको इस लॉजिक पे आना है, मतलब ये तो एलिमेंट्स है सारा सॉर्टेड, क्या है? मर्जिंग ऑफ टू सॉर्टेड एरेज, है ना? एरे 1 में अगर 1 2 है और एरे 3 में अगर 3 4 5 6 7 8 है, मतलब सॉर्टेड है। तो एरे 1 अगर खत्म हो जाते मतलब मेरा काम है चेकिंग नहीं करना है इधर उधर का, बस एरे 2 का जितना भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो एरे 3 में कॉपी कर दे रहे। देखो इसका मीनिंग ये है। या फिर अगर एरे 2 वो समझ गए, फिर बस बोल रहे हैं इफ कंडीशन को अगर नहीं डालेंगे तो भी तो प्रोग्राम रन करेगा ही, मतलब सॉर्ट करेगा ही। इफ कंडीशन अननेसेसरी है वो बोल रहे हैं। ये इफ अननेसेसरी है? अच्छा एक बार फिर देख के Yes, देखते हैं ma'am. फिर। यस मैम। ये बता रहे हो क्या? यस मैम। ठीक है,
बार देखते हैं फिर। हो सकता है ये भी हो सकता है, देखते हैं फिर। मेरा जितना लॉजिक रहा हम यही किए, एक बार देखते हैं। अच्छा, मैम वो ब्रैकेट को कमेंट नहीं किए आप, इफ कंडीशन का। इफ का ब्रैकेट तो क्लोज हो गया। नहीं मैम, नहीं हुआ। मैम कमेंट आउट नहीं किए हैं। ये उठाने के लिए बोल रहे हो? यस मैम। मैम आप ARR इंडेक्स को डिक्लेयर किए हैं? हाँ बोलो बोलो। मैम अच्छा, इंडेक्स इंडेक्स डिक्लेयर नहीं नहीं लिया ना? इंडेक्स तो इंडेक्स नहीं लिए।